Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. In previous lecture, we have covered everything about cascade cycle, and that is one of the types of vapor compression cycle. Now we will discuss a cycle which is ideal, and that is called as Carnot Refrigeration Cycle. So before going to Carnot Refrigeration Cycle, let us compare it with what is the difference between a vapor compression cycle and Carnot Refrigeration Cycle. Are you hearing me? Can you see the shared screen? Anybody speak? Unmute the mic and speak to me. Participants, please. Can you hear me? Yes, sir. Can you see the Yes, screen? sir. Okay. You can see the screen. Yes, sir. So there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 students only. One is Mr. Hassan, roll number 14. Number 6, Hafiz Asad Rahman, roll number 12. And Shahzad Riyaz Osman Akhtar, roll number 7. Very poor attendance, unfortunately. So I don't know what students want. This is the easiest way to attend the classes online from home, from anywhere you are living or outing or traveling, you can attend. But still, attendance is very poor, much poorer than the physical classes. फिजिकल क्लास से ज़्यादा मुश्किल है आपको हर वक्त वहाँ क्लास में बैठना पड़ता है। आप जिस भी हालत में हैं वो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो 100% हाजिरी होनी चाहिए। बहरहाल ये आपके सामने जो है आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल की डायग्राम है ऑन टीएस डायग्राम। ये ब्लू कलर का डोम ये माउंटेन से बना हुआ है। दिस इज एक्चुअली लेफ्ट साइड जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और राइट साइड सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये दोनों लाइनें जब टॉप पर मीट करती हैं उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है वो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर अंदर काम करता है, नीचे नीचे, इससे ऊपर नहीं करता, क्योंकि इससे ऊपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जब हम जाएंगे इधर तो ये आइडियल गैस सिचुएशन होगी। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस होती है वो आइडियल कहलाती है और उस पर आइडियल गैस लॉ लगते हैं, वेपर वाले लॉज नहीं लगते। आइडियल गैस लॉज आपको पता है पी वी इज इक्वल टू MRT, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन वेपर कंप्रेशन साइकिल सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से नीचे नीचे होता है। तो 1, 2, 3, 4, तो आप प्रोसेस 4 1 is evaporation at low pressure and temperature in evaporator. 1, 2 is isentropic compression in a compressor, in an ideal compressor, and 1, 2.1 is saturated vapor at the inlet of the compressor. 0.2 is superheated vapor at the outlet of the compressor. This is high temperature compressor, high temperature vapor, but it should be cooled in condenser up to saturation point. It will not condense unless we cool it up to saturation point. So this is saturation point, saturated vapor point. From here to left side 0.3, this is two-phase region. So two-phase yani saturated liquid and saturated vapor are in equilibrium, thermodynamic equilibrium, and after 0.3 reaches, all the vapor comes liquid. So, and from here, high pressure, high temperature liquid at 0.3 is given to throttle valve. In the throttle valve on TS diagram, S4 is greater than S3, but it is not isentropic process. It is not isentropic process. It is isoenthalpic process. It's called throttling process. 1, 2, 3, 4 is the complete vapor compression cycle. तो एक बात तो पक्की हो गई कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में वेपर होता है, आइडियल गैस नहीं होती, और इसलिए वो ये जो वेट रीजन है, जो सैचुरेटेड लाइन और सैचुरेटेड वेपर के मीट होने से जो पीक बनती है, उस पीक को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं।
तो क्रिटिकल पॉइंट से नीचे नीचे वो साइकिल काम करता है, ऊपर नहीं करता। यही चीज दूसरे तरीके से दिखाई गई है कि अगर इसको हम आइडियल से कंपेयर करें तो आइडियल साइकिल जो है वो कार्नोट साइकिल है और उसमें सिर्फ 4 प्रोसेस होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन उसमें इसकी तखसीस नहीं है, इसकी कोई मतलब परेशानी नहीं है। तो वो वेपर है, गैस है, ये वेपर में भी काम करता है, यानी कार्नो साइकिल, कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल वेपर में भी काम कर सकता है और गैस में भी काम कर सकता है। तो ये 1 2 को अगर हम यहाँ तक काट दें तो वेपर 1 2 वेपर कंप्रेशन साइकिल को यहाँ से आप काट दें और 3 को सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन पे ले आए, ये रेड कलर काट दिया जाए, तो फिर ये कार्नो साइकिल बन जाता है 1 2 3 4। तो ये 0.2 अगर इधर आ जाए नीचे, ये 0.2 इधर आ जाए और ये ट्राइंगल, रेड कलर की ट्राइंगल खत्म हो जाए सुपर हीटेड रीजन में, तो इसको हम सुपर हीटेड हॉर्न भी कहते हैं। हॉर्न कहते हैं सींग को, ये जैसे लगता है कि ये जानवर है और ये उसका सींग निकला हुआ, ये जो सींग है ये एक्चुअली सुपर हीटेड वेपर की वजह से है, लेकिन आइडियल साइकिल, कार्नो साइकिल में ये सींग नहीं होता। तो इसका मतलब 1 2 3 4 कंप्लीट रेक्टेंगल होता है। चाहे वो आप ये देखेंगे इस ब्लू डोम के अंदर अंदर जो साइकिल है वो 2 फेस में, ब्लू डोम से बाहर राइट साइड पे जो प्रोसेस है वो सुपर हीट रीजन में। तो ये गैस हो, सुपर हीट रीजन हो या वेपर हो, या तो उन दोनों सूरतों में काम करता है क्योंकि आइडियल है। इसको इससे गरज नहीं कि फेस, इसको इससे गरज है कि प्रोसेस क्या है, यानी कि कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक हो। अब देखें 3 और 4 एक ही लाइन में वर्टिकल डाउन, S3 is equal to S4, जबकि वेपर कंप्रेशन में ये नहीं है, S3 is greater than, सॉरी S4 is greater than S3। तो वो था थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यहाँ हम एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस एज्यूम करते हैं। तो 1 2 3 4 और ये जो 2 और 3 और 4 और 1 है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, आप देखेंगे ठीक है, T1 T1 is low temperature source temperature, low temperature source, and T2 is high temperature sink। तो आप देख रहे हैं कि ये आइडियल साइकिल में वर्क डन इज एरिया इनक्लोज्ड इन दिस रेक्टेंगल 1 2 3 4, जबकि वेपर कंप्रेशन साइकिल में एरिया इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज इक्वल टू दिस ग्रीन की जो लाइन है रेक्टेंगल प्लस ये हॉर्न ट्रायंगुलर एरिया। इसका मतलब है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो कि एक्चुअल साइकिल होता है, एक्चुअल गैस या वेपर होती है, उसमें काम करती है, तो वो हमेशा वर्क डन ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसकी COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कम होगी इसके कार्नो साइकिल के मुकाबले। तो हमने 2 चीज़ें साबित कर दी अब तक कि पहली बात तो ये कि वेपर कंप्रेशन साइकिल बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर काम करता है और सिर्फ वेपर और सुपर हीट रीजन में काम करता है, जबकि आइडियल कार्नो साइकिल किसी भी रीजन में काम कर सकता है। वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर आप आ जाएं, ये रहा क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे ऊपर आ जाए तो हम ये साइकिल बताएंगे। ये साइकिल बनेगी 1 2 3 4 और इधर कोई डोम नहीं नजर आएगा, वो डोम खत्म हो गया, वो नीचे चला गया, हम उससे बहुत ऊपर आ गए। T1 इज मच ग्रेटर देन T क्रिटिकल, तो इसलिए इसको 1 2 3 4 कंप्लीट रेक्टेंगल बनेगा और इसमें हमें कोई गरज नहीं है कि उसमें वेपर कहाँ है, लिक्विड है या 2 फेस है, सिर्फ आइडियल गैस हो सकती है। तो 1 2 3 4 तो कंप्लीट रेक्टेंगल। तो अब आपने देख लिया कि कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल और वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या फ़र्क है। यानी पहला फ़र्क तो यह है कि वेपर कंप्रेशन में 2 फेस रीजन होता है और कार्नो में कोई, कार्नो साइकिल 2 फेस रीजन में भी हो सकता है और सुपर हीट रीजन में भी हो सकता है और अबव क्रिटिकल टेम्परेचर भी हो सकता है। दूसरा है कि कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल में वर्क डन is minimum, work done in the cycle, net work done in the cycle is minimum and it is less than any other cycle। So उसके बाद इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि पेयर सुपर हीट रीजन में नहीं, अबव क्रिटिकल भी आप साइकिल बना सकते हैं और वही परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगी। यहाँ आपको दिखाया गया कि ये तो था परफेक्ट
यानी क्रिटिकल से ऊपर ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ऊपर, तो यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे नीचे भी वी कैन रन आइडियल कार्नोट साइकिल। 1 2 3 4 देख रहे हैं, कंप्लीट रेक्टेंगल आप इस डोम के नीचे भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये 2 फेस रीजन में भी काम करेगा कार्नोट साइकिल, और सुपर हीट रीजन या अबव क्रिटिकल रीजन में भी काम करेगा। और ये आइडियल साइकिल है। इसमें 2 प्रोसेसेस आइसेंट्रोपिक होते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और 2 प्रोसेसेस आइसोथर्मल होते हैं, heat transfer at low temperature source and heat transfer at high temperature sink। तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे ऑन टीएस डायग्राम। ये जो है ना इसकी वो सिस्टम लेआउट है। आप देख रहे हैं कि कंप्रेसर हमने इस तरह ड्रॉ किया है जिस तरह टरबाइन होती है, लेकिन फर्क है, ये टरबाइन है लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे वर्क कंप्रेसर है। दोनों की शक्ल एक ही लग रही है, लेकिन ये आप देखें इनलेट और आउटलेट के जो कनेक्शंस हैं वो उस पर गौर करें, वो डिफरेंट है। तो कंप्रेसर का जो बिगर इनलेट है उस साइड से गैस इंटर होती है, और जो शॉर्टर इनलेट है, स्मॉलर एरिया, वो उधर से गैस डिस्चार्ज होती है। तो सक्शन में चूंकि लो प्रेशर होता है, गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लिहाजा कॉन्स्टेंट मास फ्लो रेट के लिए इनलेट का एरिया ज़्यादा होना चाहिए और आउटलेट का कम होना चाहिए, क्योंकि आउटलेट पे गैस कंप्रेस हो चुकी है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो गया, लिहाजा कम जगह घेरेगा, तो आउटलेट पे ये नैरो शेप दिखाएंगे। तो ये एरिया रिड्यूसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो दिस इज कंप्रेसर। जबकि ये भी उसी तरह की डायग्राम है, और आप देख रहे हैं कि इनलेट ये है, आउटलेट ये है। इनलेट पे एरिया कम है, आउटलेट पे एरिया ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इनलेट पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर गैस है, और उसको कम एरिया चाहिए इंटर होने के लिए, फ्लो के लिए, कांस्टेंट प्रेशर मास फ्लो रेट के लिए। और आउटलेट में क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, टरबाइन में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मीन प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट, यानी कि स्टैटिक एनर्जी या प्रेशर जो है कन्वर्ट होता है व्हील को चलाने में, यानी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है व्हील को चलाने में, यानी कि काम करने में, वर्क आउटपुट देने में। तो एयर प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क आउटपुट। तो इसलिए ये टरबाइन है और इसका आउटपुट नेट वर्क आउटपुट होता है, कंप्रेसर में नेट वर्क इनपुट होता है। तो ये टरबाइन में इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एरिया इंक्रीज करते हुए दिखाया जाता है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं ये एक्चुअली हीट एक्सचेंजर्स हैं, जब जो कि लो टेम्परेचर, जब टरबाइन से गैस आउटलेट यानी कि काम करने के बाद बाहर निकलेगी तो उसकी एनर्जी मैकेनिकल वर्क की सूरत में कम हो गई और उसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, तो अब वो ठंडी हो गई। इस ठंडी एयर से आप जो भी काम करना है कूलिंग का वो कर सकते हैं, चाहे हीट एक्सचेंजर में करें या उस कमरे में से एयर गुजार दें जहाँ कूलिंग करनी है, तो वहाँ से गुजरेगी, वहाँ कमरे की एयर के साथ हीट एक्सचेंज होगा और फिर गर्म होकर यानी कि उसी प्रेशर टेम्परेचर पर हीट अप होकर आप कंप्रेसर को देंगे। कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर पर लेके जाएगा, हाई टेम्परेचर पे, और वो जो हीट उसने यानी कि लो टेम्परेचर सोर्स से ली थी वो हाई टेम्परेचर से यानी एटमॉस्फेरिक एयर में उसको खारिज कर देगा, और वो ये वाला रेक्टेंगल ऊपर वाला। तो इस तरह 1 2 3 4 प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक एरोस की डायरेक्शन का ख्याल रखना है, और ये गलत होंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ये जो ऊपर जो डायग्राम है उसका टीएस डायग्राम यानी प्रोसेस डायग्राम को ये है। 1 2 is compression process in compressor isentropically, vertical line में isentropic इसलिए कि x axis पे एंट्रोपी है, तो 1 S1 is equal to S2 isentropic process, S3 is equal to S4 expansion process in turbine, S3 is here और S4 is here, तो S3 और S4 जो है ये isentropic expansion है, कूलिंग होती है। तो हीट ट्रांसफर, हीट रिजेक्शन ये हाई टेम्परेचर पे होता है जिसको हम T2 कहते हैं। तो ये याद रखें बुक्स में या कि कोई भी शख्स इसको T1 भी कह सकता है, इसको T2 भी कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप T1 किसको कह रहे हैं, T2 किसको कह रहे हैं। T1 यहाँ हमने शो किया है लोअर टेम्परेचर सिंक,
एंड T2 हमने हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर सोर्स T1 है और हायर टेम्परेचर सिंक T2 शो किया है, यानी T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल कहलाता है। 1 2 3। अब इस साइकिल की मदद से टीएस डायग्राम की साइकिल प्योर रेक्टेंगल है। हम ज्योमेट्रिकली साबित करेंगे, डिराइव करेंगे एक इक्वेशन जो कि सीओपी की इक्वेशन कहलाती है। और सीओपी इक्वेशन ये है कि सीओपी ऑफ कूलिंग या सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये साबित करना है, ये हमें डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ दैट टीएस डायग्राम की जो ज्योमेट्री है उधर से बड़ी आसानी से हो जाता है। वो इस तरह के सीओपी की डेफिनेशन ये है कि सीओपी रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन Q एब्जॉर्ब QA डिवाइड बाई W नेट। Q एब्जॉर्ब क्या है? T1 multiplied by Q absorb T1 minus T1 multiplied by delta S। वो रेक्टेंगल है ये वाला, ये कर्व 1/4 जो है T1 माइनस S1 माइनस S4 एक साइड है उसकी, और दूसरी साइड ये वर्टिकल लाइन है जो कि T1 है, यानी ये ओरिजिन है 0 से लेकर T1 तक, ये एक साइड है, और ये S1 से S4 तक दूसरी साइड है। ये जो क्रॉस हैच किया हुआ है रेड कलर में, ये जो है ना QA है, ये इसका एरिया जो है QA के बराबर है, हीट एब्जॉर्ब के बराबर है, जो कि यहाँ शो किया गया है। QA ये लिखा हुआ है और हीट एब्जॉर्ब ये लिखा हुआ है। तो आप इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया बताएं, तो ये डेल्टा S मल्टीप्लाइड बाई T1 बनता है। तो डेल्टा S इज S1 माइनस S4। तो QA इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S, यानी चेंज इन एंट्रोपी। और W नेट इज साइकिल ये है, और W नेट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस साइकिल। ये ब्लैक कलर की जो रेक्टेंगल है उसमें ब्लैक हैश किया हुआ है। तो 1 2 3 4 1 ये वो साइकिल है जो रिवर्स कार्नोट साइकिल कहलाता है। एरिया एनक्लोज्ड ये नेट इज इक्वल टू नेट 1, वो ये है। तो उसको अब इस रेक्टेंगल को ज्योमेट्री देखो कि ये हो गया इसका एक साइड, लंबा वाला साइड, लॉन्गर साइड, और ये वर्टिकल जो है इसका शॉर्टर साइड है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वन साइड मल्टीप्लाइड बाई अदर साइड। तो अदर साइड इज T2 माइनस T1, यानी कि ये ऊपर वाली साइड, ऊपर वाला 0.3 जो है ना, T ओरिजिन से देखें तो वो T2 है, और ओरिजिन से देखें तो नीचे वाला हिस्सा जो 0.4 T1 है। तो ये जो रेक्टेंगल का ये साइड है 3 4, उसकी लंबाई क्या होगी? T2 माइनस T1। अच्छा, लेंथ क्या होगी इस रेक्टेंगल की? वो वही डेल्टा S, यानी S1 माइनस S4 चेंज इन एंट्रोपी। इसको आप S2 माइनस S3 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो इसलिए वर्क डन W नेट इज इक्वल टू, आप नीचे आ जाइए फॉर्मूले में, T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S। अब QA ये है, W नेट ये है। अब इसको COP के फार्मूले में लिखेंगे QA अपॉन Q नेट। तो ये फार्मूला बनता है T1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S डिवाइड बाई T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S। अब देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी डेल्टा S आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीछे से रह गया T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो इससे साबित हुआ कि COP of Carnot Refrigeration Cycle does not depend on the properties of working substance at all। सिर्फ और सिर्फ T1 चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स चाहिए, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सिंक चाहिए। T1 और T2 is not property of the working substance, it is the property of source and sink। So T1 is source absolute temperature। याद रखेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, सेंटीग्रेड में नहीं होगा। प्रॉब्लम में अमूमन सेंटीग्रेड दिया होता है कि भाई T1 का टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 45 है। तो आप इसमें 273 ऐड करके T1 और T2 को यहाँ लिखेंगे, T1 और T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज केल्विन, विच इज डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तब ये आपका फॉर्मूला सही बनेगा, तब आपका प्रॉब्लम सही सॉल्व होगा। अच्छा, जैसे कि हमने वेपर कंप्रेशन में बताया था कि एक ही रेफ्रिजरेशन मशीन से कूलिंग भी होती है, हीटिंग भी होती है। तो अगर हम इसको यूज करें QA को,
तो वो कमरे की एयर को आप एब्जॉर्ब करें इधर, तो ये कूलर बन जाएगा, यानी रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। और अगर ये वाली हीट को हम यूज़ करें QR को कमरे के अंदर फेंके सर्दी के मौसम में, तो फिर क्या होगा, ये हीटर बन जाएगा। तो हीट पंप उसको कहते हैं। तो उसके लिए फिर COP हीटिंग, फिर उसका तरीका ये होगा, वही होगा जिस तरह हमने ये COP कूलिंग किया है। क्योंकि हीटिंग T2 पे होती है, यहाँ कूलिंग T1 पे हो रही थी, तो T1 अपॉन डेल्टा T हो गया। यहाँ जो है हीटिंग T2 पे हो रही, तो T2 ऊपर आएगा, T2 अपॉन T2 माइनस T1। और ये उसी तरीके से साबित होगा जिस तरीके से हमने ये साबित किया है, QA T1 डेल्टा एस, वहाँ QR विल बी T2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस, और W नेट वही है T2 माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस। जब उसको हम रखेंगे COP के फार्मूले में, तो ये T2 अपॉन T2 माइनस T1 आ जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा एस ऊपर नीचे दोनों तरफ आ रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर 1 प्लस करें 1 माइनस करें, तो वी विल गेट T1 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इससे ये साबित हुआ कि COP हीटिंग इज इक्वल टू 1 प्लस COP कूलिंग, क्योंकि ये जो है T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू दिस, ये ऊपर हम प्रूफ दे चुके हैं। COP कूलिंग इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यानी कि हमने दो चीज़ें इस साबित की, डिराइव की इस रेक्टेंगल की मदद से, इस TS डायग्राम की मदद, जो कि कार्नो रेफ्रिजरेशन साइकिल का है, ज्योमेट्रिकली हमने साबित किया कि COP रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1, और COP हीटिंग इज इक्वल टू 1 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1, या T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो इससे साबित हुआ कि अगर आपको COP प्रॉब्लम में दे दिया जाए, तो आप बड़े आराम से COP कूलिंग दे दिया जाए। फर्ज कीजिए कोई कहता है जी एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसका COP कूलिंग 3.5 है, तो बताइए उसका COP हीटिंग क्या होगा। तो COP हीटिंग होगा 1 प्लस 3.5, क्योंकि 1 प्लस COP कूलिंग इज COP हीटिंग, तो ये हो जाएगा 4.5। तो इस तरीके से आप जरा ये चीज़ें डिराइव करते हैं, और ये डेफिनेशन है COP कूलिंग COP हीटिंग की। उसके बाद आपने देखा कि ये ईटा का सिंबल बना, ईटा P, इसको हम परफॉर्मेंस फैक्टर, COP हीटिंग को हम, ये हीट पंप के लिए मखसूस है, ऐसी डिवाइस, ऐसा एयर कंडीशनर जो हीटिंग भी करे सर्दियों में और गर्मियों में कूलिंग भी करे, तो उसको हम कहते हैं हीट पंप। तो हीट पंप की जो परफॉर्मेंस है उसको COP हीटिंग भी कहते हैं, और उसको यानी कि परफॉर्मेंस फैक्टर ईटा P भी कहते हैं। अब इसमें हम देखें, ये चीज़ हमने साबित कर दी कि ये दोनों सूरतों में, चाहे COP कूलिंग हो या COP हीटिंग हो, वो फंक्शन है सिर्फ दो चीज़ों का, दो टेम्परेचर्स का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2, वेयर T2 is the T1 is the temperature of low temperature source, absolute temperature low temperature source in degrees Kelvin, और T2 is the absolute temperature of high temperature sink in degrees Kelvin। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम उस फार्मूले में जाएं जो COP का है, जिसमें ये है T1 ऊपर है, T2 माइनस T1 नीचे है। अगर हम T1, तो यहाँ उसको एनालिसिस हम कर रहे हैं कि अगर T1 T2 इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो उसका असर क्या होगा COP पर। COP पर क्या असर होगा कि अगर COP यानी अगर T2 हम डिक्रीज करते हैं तो COP क्या होगा। अब बताइए, इस फार्मूले को देख के बताइए। आप देख रहे हैं फार्मूला, T2 नीचे आ रहा है। अगर हम T2 को इंक्रीज कर दें, T2 इंक्रीज करेंगे तो ये नीचे वाला यानी T2 माइनस T1 वही है। T2 इंक्रीज करेंगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है T2 माइनस T1, ये इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जब बढ़ जाएगा तो T1 अपॉन T2 रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब T2 यानी कि टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक इंक्रीज हो जाए तो COP हमेशा डिक्रीज होगा, COP हमेशा डिक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा T2 इंक्रीज होने से, तो COP डिक्रीज होगा। और सीधी सी बात है कि अगर आप कूलिंग कर रहे हैं और हीट रिजेक्ट कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर पर से 40 डिग्री पर, बाद में आप उसको बढ़ा देते हैं 40 के बजाय,
45 या 50 कर देते हैं तो उसमें वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा और COP मजीद कम हो जाएगा। तो T2 इंक्रीज करने से यानी सिंक टेम्परेचर इंक्रीज करने से COP घट जाता है यानी रिड्यूस हो जाता है। और अगर हम T1 इंक्रीज करें, इसी फार्मूले को देख के बताइए तो क्या असर होगा COP पर। T1 यानी क्या सवाल था, डिक्रीज, T1 डिक्रीज कर दिया हमने तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाएगा। जब न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वही की बात है, COP डिक्रीज होगा। तो ये ऐसी बात है कि कूलिंग ज्यादा लो टेम्परेचर पे, यानी एक कूलिंग आप कर रहे हैं -10 पे, आप उसने उसको उसको आपने मजीद डिक्रीज कर दिया T1 को, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर -20 पे कूलिंग करनी है तो फ्रिज को ज्यादा काम करना पड़ेगा, कंप्रेसर को। तो जब T1 रिड्यूस होगा तो COP भी डाउन होगा और मैथमेटिकली आप देख लें न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है तो हमारे COP भी रिड्यूस होगा। अब इसका उल्टा असर T1 इंक्रीज करने से क्या होगा, यानी जिस फ्रिज का टेम्परेचर जो -20 पे कूलिंग कर रहा था उसको -10 पे कूलिंग पे लगा दें, उसका थर्मोस्टेट सेट कर दें, तो फ्रिज को तो कम काम करना पड़ेगा क्योंकि आप उसको पहले बहुत डीप कूलिंग करनी पड़ती थी, अब कम डीप कूलिंग करनी पड़ रही है। तो लिहाजा T1 इंक्रीज करने से COP बढ़ेगा और मैथमेटिकली भी जाहिर है न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी T1 अपॉन T2 माइनस T1 भी बढ़ेगी। तो इस तरह हम T1 T2 का एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फार्मूलाज। अच्छा, अब ये जो है ना एक्चुअल में और आइडियल यानी कार्नोट साइकिल में क्या यानी कि कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से आइडियल साइकिल की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, उसकी COP बेस्ट होती है। दुनिया का कोई भी फ्रिज अगर हम COP इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, आइडियल फार्मूले से जो कि कार्नोट साइकिल का COP है, ये वाला इस फार्मूले से अगर हम करें तो दूसरा किसी भी तरीके से एक्चुअल तरीके से करें, चाहे साइकिल कोई भी हो, उसकी COP हमेशा इस तरीके से कैलकुलेट करने वाली COP से हमेशा कम होगी। यानी कार्नोट साइकिल की COP मैक्सिमम पॉसिबल है, उससे ज्यादा कोई फ्रिज बनाया नहीं जा सकता जिसका COP T1 अपॉन T2 माइनस T1 से ज्यादा हो। तो ये इसका कंक्लूजन है। तो उसकी अच्छा उसकी वजह यह है कि आइडियल साइकिल क्यों है, उसकी वजह यह है कि T1 and T2 can be kept constant in two-phase region only, evaporation and condensation। एक्चुअल साइकिल में सुपर हीट भी होता है, जो मैंने ऊपर दिखाया हॉर्न यानी सींग, लाल रंग का सींग निकला हुआ था, उससे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाता है। इसलिए जो है एवेपोरेशन एक तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है और दूसरा ये है कि ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर की शर्त है ये आइडियल है। एक्चुअल प्रोसेस में टेम्परेचर जब भी हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर सिंगल फेज सब्सटेंस है, सिर्फ गैस है, सिर्फ लिक्विड है, तो उस सूरत में टेम्परेचर हीट रिमूव करने से वो ठंडा होगा और हीट ऐड करने से गर्म होगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर अगर सिंगल फेज है। तो सिर्फ टू फेज में ये T1 T2 कांस्टेंट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से, जब तक सारे के सारा लिक्विड वेपर ना बन जाए टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब तक सारे के सारा सैचुरेटेड वेपर कंडेंस ना हो जाए, लिक्विड ना बन जाए, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसीलिए सिर्फ टू फेज रीजन में ये वाली कंडीशन जो आइडियल साइकिल की, जो कार्नोट साइकिल की पूरी हो सकती है, अदरवाइज नॉट। इसके बाद दूसरी शर्त है कि ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल है। याद होगा आपको थर्मोडायनेमिक्स 1 में हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की डेफिनेशन बनाई थी। एक होता है इंटरनल रिवर्सिबिलिटी, एक एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी वो होती है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो, प्रेशर डिफरेंसेस और टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे तो वो एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी होगी और उसकी वजह से आइडियल साइकिल नहीं बनेगा। तो डेल्टा T अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में फर्क बहुत कम होना चाहिए। अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब है 0.0040 लाइक दैट। डेसिमल के बाद 4.0 के बाद 1 आना चाहिए, यानी बराए नाम। तो फिर तो ये आइडियल साइकिल बनेगा, वरना नहीं। और एक्चुअल
मशीन बन ही नहीं सकती जब तक डेल्टा टी डिस्क्रीट ना हो, यानी उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ना हो। डेल्टा टी 5, 6, 7 डिग्री ना हो तो हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। और अगर डेल्टा टी को रिड्यूस करते जाओगे, 0 करके 0.001 करोगे, बहुत माइन्यूट डेल्टा टी रखोगे, तो उससे क्या होगा, एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर इनफाइनाइट यानी बड़ा हो जाएगा। तो क्यों, आप उसकी वजह है कि आपने हीट ट्रांसफर में ये पढ़ा होगा या आइंदा पढ़ लेंगे, हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। डेल्टा टी जब अप्रोचिंग टू जीरो होगा तो फिर तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू जीरो इज जीरो, हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। अगर हीट ट्रांसफर करना है, थोड़ा बहुत भी करना है, तो आपको एरिया को इनफाइनाइटली लार्ज करना पड़ेगा, यानी मशीन इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी जिसके रखने की जगह भी नहीं हो, इसलिए ये नामुमकिन है। तो डेल्टा टी एक्चुअल साइकिल में, एक्चुअल मशीनों में हमेशा स्पेसिफिक रखा जाता है, जीरो नहीं रखा जाता या नियर जीरो नहीं रखा जाता। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल और आइडियल कार्नोट साइकिल में, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये बार बार हम आपको पढ़ा चुके हैं, थर्मो 1 में, थर्मो 2 में, और आइंदा सारी जिंदगी आप पढ़ते रहेंगे इसको। ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर जो मकान बनेगा, आपके इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट बनेंगे वो मजबूत होंगे। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। तो खुदा हाफिज। हेलो, खुदा हाफिज। जवाब जवाब आना चाहिए, अच्छे बच्चे जवाब देते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके। अल्लाह हाफिज सर जी।